How are you, Vijaya? I am good. How are you? I Disappointed with am the last week of Big Boss? shocked. I am really in a state of shock. I mean, two very strong, rather three very strong contestants now not in the Big Boss house. Right. सो सीन पूरी तरह से पलट गया. मतलब राहुल ने वॉलेंटरी एग्जिट लेके मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर लिया. आई वाज रूटिंग फॉर हिम. निकी तंबोली कम वोट्स के कारण एविक्ट हो गई और कविता कौशिक जी वॉकड आउट. She was also one of the strong players, whether we like her or not. That's a different thing. Yes. But तो फिर घर में बचा क्या? I mean, Ali's out. I mean, all these people were giving so much masala. They were playing a game. They were doing whatever they were doing. And I don't know what happened. So let's start from the beginning. And they were doing it from day one, right? शिफाली, ऐसा नहीं है कि पिछले 15 दिन में अपना गेम दिखा रहे थे वो लोग. See, I'll like come the to rest that. of. According Yeah. to me, I'll tell you what happened. Yes, please go on. This week we had 3 tasks. Very important tasks. First task was the Dark Secrets task, जिससे directly ticket to finale मिलने वाला था. पहले तो I must say that बहुत ही courage लगता है to come out on national television and talk about your deepest secret. Right. Something that you're so fearful of. आपका जो childhood trauma होता है, majorly जो childhood trauma होता है वो आपको जीवन भर traumatize करता है. जितने भी लोग अपने यहाँ सीक्रेट लेके बाहर आए उनके करेज की मैं डेफिनेटली दाद देना चाहती हूँ. किसी का सीक्रेट मैं नहीं मानती ज्यादा मेरे लिए मूविंग था या कम मूविंग. It is an act of courage to come out on national TV and talk so openly about your trauma. जैसे रुबीना जी ने कहा about her trauma that they had almost separated and they were considering divorce and they gave themselves another chance till November and they came into the Big Boss house. तो अगर मैं होती तो मैं बिग बॉस घर में नहीं आती बिकॉज ये बहुत बड़ा रिस्क है. बिग बॉस घर में बने हुए रिश्ते बिगड़ जाते जी. तो अगर उन्होंने ये किया है एंड अब वीकेंड के बाद पे अभिनव ने ये कहा कि आई हैव फॉलन इन लव विद रुबीना ऑल ओवर अगेन. तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि जो उन्होंने रिस्क लिया था जो शायद मैं नहीं लेती वो रिस्क उनके लिए फ्रूटफुल रहा. The crisis that the Big Boss house created for them, they only grew to be stronger, which is great for them, which may not happen with everybody, but this shows that they are in love with each other and they are ready to work on their relationship. और अब मुझे if you try and think about Rubina's reactions towards Abhinav and Abhinav's reactions towards Rubina, मुझे अब सब justified लगता है because they were fighting their own battle. रुबीना का ओवर रिएक्शन जब उनके हस्बैंड को सामान कहा गया था या अभिनव का ओवर रिएक्शन जो हम कहते थे कि आप अपने मुद्दे में नहीं लड़ते हो रुबीना के मुद्दे में लड़ते हो. तो एक्चुअली दे वर एक्चुअली बैटलिंग देयर ओन इश्यूज एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस वर वेरी हार्ड ऑन रुबीना एंड अभिनव बिकॉज हमें उनकी बैक स्टोरी नहीं पता. दो मीडिया में स्पेकुलेशन बहुत थे बट उनके खुद के मुंह से ये सुनना and they coming out victorious in this battle, hats off to them. And I would really wish and pray that उनकी जोड़ी बनी रहे always and they are always very happy. Coming to Ajaz, I was very disturbed. अब समझ में आया कि उनको क्यों नहीं गवारा था जब कोई उन्हें हाथ लगा. Right? It all makes sense now. And I don't know, there was just so much pain in what Ajaz was saying that I had to really mute my television for some time because it moved me too. Then Kavita ने अपनी story बताई about the tuition teacher. Nikki ने अपनी story बताई about being kidnapped. It's hard to believe, but ऐसा होता है. And I'm sure she was very young and whatever happened with her, she has become stronger and smarter today. Right. Abhinav coming out and saying that he had no work and he was almost broke
Jasmine saying that she tried to commit suicide. So ये easy चीजें नहीं है, ये बिल्कुल easy चीजें नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है ये टास्क अगर वैसे ही किया गया होता तो बहुत ही अच्छा था. I don't think you should relate this task with immunity or a ticket to finale, because or instead of judging the Ali didn't have emotions. a secret, Rahul didn't have a secret. जरूरी नहीं है कि सब हर किसी के साथ कुछ ऐसा भगवान करे किसी के साथ ना हो, but being in this game, I don't think they should have made this task about immunity, because मेरे हिसाब से किसी का ट्रॉमा कम ज्यादा नहीं होता है. बिल्कुल. और क्योंकि किसी को कोई ट्रॉमा नहीं है इसलिए वो वीक नहीं होता है. I mean, Ali, he has no deep dark secrets. He's a very strong player. Rahul had no deep dark secrets. He's a very, very strong player. So, I think a task on its own, बहुत, for the brave है, for courageous, उन्होंने अपने आप को prove किया है. But I wish इससे वो ticket to finale related नहीं होती. Right. तो बहुत चीजें अलग होती हैं. खैर, एजाज won the task. And I'm very happy he reached the finale, not because he won the task, but he was a deserving player, right? True. Coming to the next task, which was the 37 minutes task. I mean, I think ये task किसी को, कुछ लोगों को समझ नहीं आया. जैसे ही बिग बॉस ने अनाउंस किया कि आपको अपनी अपनी टीम्स बनानी है, I don't know why Rahul went to Ajaz. एजाज ऑलरेडी हैज अ टिकट टू फिनाले. राहुल, एजाज की अच्छाई है कि उन्होंने टास्क इतने अच्छे से खेला, मगर अगर कोई गेमर होता वो टास्क नहीं खेलता और आपको हरा देता एंड यू हैव बीन आउट फ्रॉम द रेस. सो ये सोचने वाली बात है. पीपल डिडंट गिव इट अ थॉट कि उन्होंने अपनी जोड़ियां कैसे बनानी. तो दैट वाज समथिंग दैट दे हैड टू थिंक अबाउट. बहरहाल हो गया, जोड़ियां बन गई. ये जैस्मिन अली ने क्या कर दिया, मतलब नॉट दैट दे न्यू दैट दोनों में से एक एविक्ट हो जाएगा, मगर एक आइडिया तो होता ही है. उनको आपस में टीम नहीं बनानी चाहिए थी, उनको किसी और के साथ टीम बनानी चाहिए थी. एंड दे कुड हैव सिक्योर्ड देयर पोजीशन. दे हैड बेटर चांसेस. बिल्कुल. अब बाय लूजिंग अली, हु सच अ गुड प्लेयर, एंड उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, जो मुझे बीच में लग रहा था कि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे हैं अबाउट taking Jasmine forward in the game, उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा और उन्होंने बहुत बड़ी एक सैक्रिफाइस कर दी. It's a very big sacrifice to walk out of such a big platform for your part. So kudos to Ali for making that decision. But I would like to point a finger to Jasmine then, that if it was one of y'all, तो वो क्यों नहीं निकली. मतलब मुझे उनकी बातों में कोई कन्विक्शन नहीं दिखा. मतलब अज्यूम कर लिया था कि भाई हाँ मुझे बुरा लगेगा, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, बट मैं जाऊंगी. ये भी वो जज्बा नहीं दिखा. खैर उनके गेम के लिए अच्छा है, वो रह गई गेम में. अली निकल गए घर से. दैट वाज अनदर शॉकर फॉर मी, because I consider Ali as a very good player. Whether I like him, not like him is out of the question, but at least he was a player. He was playing in the house. Right. 37-minute task. It's weird for me as a viewer because I can't really see how one has performed. I will never know. क्योंकि कोई वहाँ But ऐसे कुछ similar task last season भी हुआ था, जिसमें आसिम had emerged winner. Yes. So as an audience, I would need more transparency on the task. जो बाकी task होते हैं, जैसे शार्क अटैक का task था, हमें दिख रहा था कौन चढ़ रहा है कौन नहीं चढ़ रहा है, क्यों कोई हारा क्यों कोई जीता. बट ये जो टाइमिंग वाले टास्क होते हैं, या तो बिग बॉस को कहीं एक टाइमर लगा देना चाहिए ऑडियंस के लिए, कुछ ताकि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रहे, क्योंकि मन में फिर सवाल उठते हैं. एंड इट्स वेरी नेचुरल कि मैं कैसे मान लूं. आई मीन, आई थिंक जैस्मिन एंड अली आर वेरी स्मार्ट एंड दे वर 20 मिनट्स ऑफ. इतना तो अंदाजा होता है. बट वो हाउसमेट्स को भी लगने लगा था शिफाली, राइट, कि सबसे लॉन्गेस्ट उनका ही होगा. यू डोंट हैव अ वॉच विद. आप स्पेकुलेट कैसे करें. some people even play games by saying हाँ तू तो नहीं था, तेरा तो बड़ा लंबा था, अरे तेरा तो बहुत छोटा, तू जल्दी वापस आ गया. See, these are all games we play in the house. But I don't know. I mean, fine. Somebody had to lose. Unfortunately, Ali ने कुर्बानी दे दी. And then came the shark attack task.
again another task that I didn't understand the reason for having such a task for ticket to finale. I mean, it was a task based on strength, purely strength task था. I mean, यहाँ पे yes, वो थोड़ा बहुत अपना strategize कर सकते थे. The strategy was not getting on top of the boat and taking one person out. That is not possible. कोई chair नहीं छोड़ता है. ब्लॉक करना वाला आप नाचो, आप गाओ, आप कुछ भी करो, कोई चेयर नहीं छोड़ेगा. इट्स अ टिकट टू फिनाले टास्क. राइट. आपकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए थी कि वो बोट पे ही ना चढ़े, किसी को ब्लॉक कर लो, जो निकी ने किया. शी वाज द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड हाउ दिस टास्क वाज टू बी प्लेड. एंड खैर जैस्मिन डिड वेरी वेल. उन्होंने पूरी कोशिश की अभिनव को उतारने की. निकी डिड वेरी वेल. But it's a task of pure strength. आप एक 80-85 किलो की लड़की को कैसे, you know, I consider myself to be a very strong girl, but my strength is a little less always compared to a man. So I don't know. I think, and I mean, I kind of got angry with the task because अभिनव से बहुत deserving लोग हैं घर में who deserve the finale, and Abhinav is somebody who has not performed earlier tasks very well. तो फिर तो या आप कह लो कि he was lucky. But I don't think the Big Boss game is about luck. Big Boss game is about your performance and the audience's support. इसमें audience भी कुछ नहीं कर सकती. By fluke वो finalist बन गए. Absolutely by luck. He has not played. एजाज का बॉक्स वाला टास्क बोलो तो he didn't show any spirit. He said नहीं मेरे ऊपर हाथ पे बात देता है, मैं नहीं खेल सकता. And I'm not, I mean, the girls, Nikki, Jasmine, Pavitra, these people have really performed in a task, even being women. अपन endurance बोल दो, strength बोल दो, but Abhinav, I understand luck plays an important factor in life. But when you talk about a game like Big Boss, I just thought, you know, जिस तरह का effort Jasmine और Nikki ने इस game में किया था, they deserve to go to the finale. Jasmine, really, I could see she was working so hard, and Nikki was working so hard. मतलब, they were using all their strength, and it's exciting. But Abhinav got lucky; he reached the finale. फिर कविता मैडम की बोलाचाली हो गई रूबीना जी से, और फिर पर्सनल हो गई वो. और मतलब जिस तरह से रूबीना इस बार फटी है, I'm so happy that she gave it back to Kavita. Kavita is a tall, big woman. जो जिस किस्म की उनकी आवाज है, she come across as very intimidating. But रूबीना के अंदर तो मतलब क्या जुनून था, and उन्होंने क्या उनको मतलब दिया है जवाब. कविता left the house. इनफैक्ट अभिनव ने भी धमकी दी मारने की उनको, कि एक तमाचा मारूंगा, गर्दन पलट जाएगी तेरी. You do understand what she was talking about. देखो, मैं तुझे मार दूंगा, ये एक एक्शन का रिएक्शन होता है. She was really going personal on Abhinav. I understand Abhinav's anger. That time तो वो झगड़ा, लेकिन कविता और शिफाली की कविता और रूबीना के बीच में चल रहा था. That time he was not involved. उस टाइम वो नहीं. He is always involved when there is a fight with Rubina. That is what he is involved, right? He has time and again said that कोई भी मेरी बीवी से बदतमीजी करेगा, मुझे नहीं अच्छा लगता है. But that is, don't you think? But don't you think, Shifali, then that is unfair on the other contestants? Like, मतलब वो निक्की जैसी लड़की को भी नहीं छोड़ते हैं, वहां पर भी वो बुली करने के लिए पहुंच जाते हैं. This is the Big Boss house. You don't get intimidated. If somebody is trying to bully you, don't get bullied. And मुझे तो लगता है कि जब आप बुली होते हो और उसको बर्दाश्त करते हो, you are actually shining. So let's not get into the whole space of कोई बुली क्यों करता है, नहीं करना चाहिए. बिग बॉस के घर में all the seasons there have been bullies and they will always be. It's about you. It's about how you stand up to the bullies. But that's really not even part of the discussion. I'd like to wish Abhinav congratulations, but I totally thought that there were more deserving contestants. Yeah, yes, I agree. And I was very, very disappointed when
निकी गॉट एलिमिनेटेड, क्योंकि कुछ भी बोलो वो लड़की पहले दिन से शी इज गिविंग इट ऑल दैट शी हैज. बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है 24 hours you know to be up to something. She had a strong personality. She was doing the tasks very well. उनका यही प्रॉब्लम रहा सिर्फ गेम में कि उनकी कोई allies नहीं बन पाए, but that is okay. बहुत लोग सोलो रह के जीत गए हैं गेम. Maybe she could have reached the top 3 of the final finale, but she had everything to move forward in the game compared to Abhinav. Yes. Who got lucky? Okay, again, this is the Big Boss house. कभी भी कुछ भी हो सकता है. But I did not agree with the tasks. या तो आप टिकट टू फिनाले मत रखो, टास्क में परफॉर्मेंस देख ले, and then leave it to the public, because I think Big Boss is about public. Let the public watch the effort and decide who gets to go to the finale. Yeah. Let them do that. I mean, I didn't agree with the Dark Secrets task. I didn't agree with the Sharp Attack task. I think इसको another week होता ठीक है, but not for the ticket to finale. It was. However, the Dark Secret task did inspire me. I'm sure it must have inspired a lot of people. Yes. So a lot of positivity has come out of the task. Moving forward, there are a lot of other things also that happened through the week. ऐसा लग रहा था कि फाइनल वीक है बिफोर द फिनाले, तो मतलब जो कंटेंट देना है दे दो, बस दिखना है. मतलब एजाज बॉडी शेविंग राहुल, that is something that came as a shocker to me. I mean, I understand वहाँ पे temperaments high हो जाते हैं, बट वो अभिनव से जो डिस्कस कर रहे थे कि ये ना इनसिक्योर है, और वो भी एक बार नहीं, दो तीन बार. Exactly. Something about his hair. And the surprising part is जो दो लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, walking on the right path और ये और वो, they joined them. They joined them and they were laughing. That's what I'm saying. कविता वाला इंसिडेंट दोहराया गया. Exactly. ये क्या हो गया फाइनल वीक में इन लोगों को कि इतना, मतलब या तो घबरा गए या तो क्या हो गया. जैस्मिन ने भी एजाज को परेशान किया कि आप निकी को माफ कर देते हो, मुझे माफ नहीं करते. फिर रुबीना राहुल की भी मचमच हो गई, जिसमें अगेन औकात, छछुंदर, बंदर, ऐसे लग रहा था कि मतलब क्या कर रहे हो तुम. दिशा का भी नाम निकाला गया. I mean, come on, you cannot go personal. Like Nikki was talking about, she was character assassinating Rahul. And मुझे लगता है कि घर के बाहर के मुद्दों को बाहर ही रखना चाहिए. घर के बाहर के मुद्दों को घर में डिस्कस नहीं करना चाहिए. मैं ये नहीं कहती कि निकी के साथ हुआ है नहीं हुआ है, मैं राहुल की साइड नहीं ले रही, मैं निकी की साइड नहीं ले रही, पर निकी का ये घर के अंदर डिस्कस करना गलत है. So ये सब कुछ हुआ. मतलब आपको शिफाली यहाँ पे एक बात लगती है जो हमेशा राहुल कहते आए हैं, डे 1 से जब उनके ऊपर सारे इल्जाम भी लगे थे, he has been voicing out this particular thing कि अभिनव और रुबीना का हमेशा से सिलेक्टिव रवैया रहा है हर चीज में. अगर उन पर कोई बात होती है, उठती है, तो दे रिएक्ट. अगर किसी और के साथ हो रहा होता है, दे जस्ट स्टे मम. डू यू एग्री? टाइम एंड अगेन बहुत बार हुआ है. कविता के और एजाज के झगड़े में कोई बीच में नहीं आया है. जैस्मिन और एजाज के झगड़े में कोई बीच में नहीं आया है. रुबीना और कविता और अली के झगड़े में जब वो वायलेंट हो गए थे. और इस बार रुबीना ने भी दिशा का नाम निकाल कर ताने मारे. सो मतलब यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है. सबके घर शीशे के हैं और किसी को किसी पे पत्थर नहीं डालना चाहिए. यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं है. अच्छे गेमर्स है, बुरे गेमर्स है. राहुल अच्छा गेमर था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. मुझे नहीं पता ये पिछले हफ्ते में उसके साथ क्या हुआ कि उसने हिम्मत मतलब उसकी लूज हो गई. मुझे ये लगता है, अगर आपने नोटिस किया तो जो डार्क सीक्रेट्स का टास्क था उसमें भले राहुल का कोई सीक्रेट नहीं था शेयर करने के लिए, बट ही वाज वेरी डिस्टर्ब्ड जब वो बात हुई कि एजाज हैज नेवर, उनको माँ का प्यार नहीं मिला है. और उन्होंने निकी को भी ये कहा था कि तू अंदर जा रही है, अपना माँ बाप का सोच के बोलना. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट द वीक.
मगर होम सिक तो सारे ही होते हैं. 2 months into the game, everybody is homesick, everybody is missing the parents, everybody is missing their house. बट एक ट्रिगर होता है. तो आई थिंक कि जो डार्क सीक्रेट्स वाला टास्क था उसने राहुल को अंदर से डिस्टर्ब कर दिया. ही स्टार्टेड मिसिंग हिज पेरेंट्स टू मच. बाकी इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो शिफाली, द वे आई लुक एट इट, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से गेम पिछले 3 हफ्ते से बढ़ रहा था, वेर पंचायत टास्क रखा गया, उसमें सिर्फ रूबीना एंड जैस्मिन वेर गिवन चांस. सीक्रेट टास्क में भी डार्क पास्ट को इम्पोर्टेंस दिया गया और फिर एक को टिकट दे दिया गया फिनाले के लिए. So you think Rahul lost his motivation? Hope. Yes, because I think कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये गेम जो है वो बहुत वन साइडेड हो रहा है. जो लोग डिजर्विंग नहीं है वो फिनाले में पहुंच रहे हैं. सारे गेस्ट जो घर के अंदर गए थे, आई विश किसी ने राहुल को कन्वे किया होता कि क्या फैन फॉलोइंग है. इनफैक्ट मुझे एक चीज भी समझ में नहीं आई कि ओवर द सीजन, every season it has happened that if somebody or the other wants to leave the house. Yes, श्रीशांत, विकास गुप्ता. ने तो छलांग, लाइक श्रीशांत थी, उन्होंने तो छलांग भी मार दी. Every week he used to do it. हमारे सीजन में एक पॉइंट पे शहनाज को जाना था तो सलमान सर बकायदा घर के अंदर आ गए थे उसको समझाने. सिद्धार्थ को जाना था, उनको कन्फेशन रूम में बुलाया गया. ऐसा राहुल के साथ क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल. मतलब इतने इजीली सी मॉरल सबका डाउन होता है. हम सब गेम में लो होते हैं और फिर जब बिग बॉस सेंस करते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी थक रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो वीकेंड पे मोटिवेशन मिलता है, या तो फिर घर में आपको परेशानी है तो कन्फेशन रूम में बुलाते हैं. मुझे नहीं पता हर एक कॉन्वर्सेशन ऑडियंस को दिखाई जाती है या नहीं, बट सलमान सर ने उनको बोला कि आप लैक ऑफ एंथुसियाज्म है और उन्होंने हाँ बोल दिया राहुल ने. एक तो आपका पैर स्लिप हो गया है, आप चढ़ गए हो बोट पे, आपके बोलने पे कौन उतरने वाला था? कोई भी नहीं उतरता. तो इसमें लैक ऑफ एंथुसियाज्म नहीं था. इनफैक्ट गेम के शुरुआत में मैंने देखा था राहुल वाज जस्ट लुकिंग एट द बोट, ही वाज वेरी फोकस्ड. कोई एफर्ट नहीं किया गया उनको समझाने का, एक चांस देने का. मतलब घर वालों तक नहीं किसी ने उसको समझाया. Yes, that was very surprising. कि किसी ने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की. क्यों? क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर अगर वॉलंटरी एग्जिट लेना चाहता है तो घर वालों के लिए तो चांदी चांदी है ना. बिल्कुल. अब जो एक कंटेस्टेंट, ये तो सर ने बाद में बताया कि राहुल was not the person with the least amount of votes. मतलब कोई एक जन बच गया, वो कौन हो सकता है? रूबीना या जैस्मिन, या तो रूबीना. तो I don't know what happened in the past 2 days with Rahul. वो अकेले लड़ते थे पूरे घर से, इतना जोश था, इतना एंटरटेन करते थे. इनफैक्ट बोट वाले टास्क में उन्होंने वो जो ड्रंकन की एक्टिंग करके एंटरटेन किया है. So I don't know what happened, but I just think the maker should bring him back. Yeah. If this is a strategy or या ये कोई मतलब creatively, I don't know. मतलब ऐसा कहा गया था, मतलब मैंने पढ़ा था, सुना था कि मेकर्स ने कविता को भी समझाने की कोशिश की थी कि आप वापस चले जाओ. I hope राहुल को भी वो समझाए या राहुल खुद समझे and he comes back into the house because we've lost a very very good player and I don't know why उनको voluntary exit का option भी दिया गया. I don't understand why. बहुत फिर माइंड में चीजें आती है कि क्या ये प्री प्लान था या क्या उनको ऐसा लगा होगा कि रूबीना एंड जैस्मिन दोनों चैनल के फेसेस हैं, टीवी के फेसेस हैं, तो जाहिर सी बात है उन दोनों को ज्यादा वोट्स आए होंगे. उनको शायद कहीं ना कहीं लग रहा होगा एंड वो पहले से ही थोड़ा डीमोटिवेटेड हो गए. 5 minutes he could have waited 5 minutes for the result. In fact सलमान सर उनको हिंट भी दे रहे थे कि हो सकता है कि आप सबसे कम वोट्स ना हो. अब मुझे नहीं मालूम कि टेलीकास्ट पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ है नहीं हुआ. ऐसा हो सकता है कि राहुल ने कुछ और बोला हो या सलमान सर से कुछ और बातें हुई हो जो नहीं दिखाई गई हो लेंथ के लिमिटेशन के वजह से. बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद राहुल. आई वाज रूटिंग फॉर हिम. ही वाज वन ऑफ द वेरी गुड प्लेयर्स. थोड़ी हिम्मत रखनी थी राहुल को एंड आई जस्ट होप
players like Rahul, players like Ali Goni get a chance to come back. Last season, Also Nikki Tamboli. Very much. Coming, I was just going to come to that कि जो challengers घर के अंदर गए हैं, जो housemates का जीना हराम कर सकते हैं, सिर्फ निक्की तंबोली फिलहाल एक ऐसी हाउसमेट है जो चैलेंजर्स का जीना हराम कर सकती है अगर वो अपने पे आ गई तो। बिल्कुल, क्योंकि आप रूबीना की पर्सनालिटी देखिए, जैस्मिन की पर्सनालिटी देखिए, राखी सावंत की पर्सनालिटी देखिए, कश्मीरा की, अर्शी खान की। So I would really like to see Nikki Tamboli in the house with Rakhi and Arshi and Kashmira. She can really give it back. Right. So very good players have gone out of the house. I'm really sad, and I hope a lot of people were brought back last season, like Arhan, Shifali Bagga, Rashmi, Devolina. 4 people were brought back. I hope these people are brought back. Because right now, इन लोगों के एग्जिट के बाद गेम कोशेंट मेरे लिए बहुत ही लो हो गया। और प्रोमो में ये देखना कि अर्शी खान अभिनव से फ्लर्ट कर रही है ओपनली इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ एंड सेइंग थिंग्स लाइक मैं तुझे पापा बना दूंगी इज नॉट समथिंग दैट गोज वेल विद मी। ऑनेस्टली मे बी इट्स एंटरटेनिंग फॉर पीपल बट आई लाइक टू वॉच बिग बॉस फॉर द गेम। या ट्रू। So I don't know, maybe the entertainment quotient goes up, but I hope the game quotient remains up too. There are masterminds like Vikas Gupta in the game now. Abhi Manu abhi gaye huए हैं. He's a great player. So let's see. But I don't know now Rahul or Arshi and Rakhi. I don't know what is going to happen in the house now. And you know, कहीं ना कहीं अर्शी का वही वाला जो वो हितेन के साथ कर रही थी अपने सीजन में, वही सेम चीजें कहीं ना कहीं वो रेपिटेटिव हो जाएगा लोगों के लिए। I don't know, for me, जो गेम बहुत ही पेसी हो गया था in the last 2 weeks. I was enjoying the game. एक गेम एक डायरेक्शन में जा रहा था, क्लियर हो रहा था, दुश्मनी, दोस्ती, जो पहले से मैं कह रही थी कि स्टोरीज नहीं बन रही है घर में, वो स्टोरीज बननी शुरू हो गई। अब यहाँ पे तो ऐसा हो गया कि बिग बॉस ने वो जो मोमेंट्स का टास्क कर दिया, इसमें सारे घर वाले यूनाइट हो गए। तो व्हाट इज दिस गेम गोइंग टू बी अबाउट? चैलेंजर्स वर्सेस हाउसमेट्स? आई डोंट नो नाउ व्हाट द गेम इज गोइंग टू बी रियली। I truly hope, but I think there must be something to it because the number of housemates are 4. The number of challengers are 6. There is still an imbalance. ऐसा हो सकता है and I hope ऐसा हो कि कुछ अच्छी खिलाड़ियों को वापस घर पे बुलाया जाए. And then we'll see how the game moves forward. But I think then it will get very interesting. 6 challengers versus 6 housemates. Yes, एक बैलेंस हो जाएगा और फिर नए सिरे से गेम शुरू होगी. And I will look forward to that. So I still feel that there is an imbalance. I don't know. बिग बॉस में कुछ भी हो सकता है. But मेरी पूछे तो मैं चाहूंगी कुछ खिलाड़ी वापस जाए. Anybody, Nikki, Ali, Rahul, these are good players. They deserve to be back in the house. Right. So I just hope there is a game left apart from the entertainment quotient, and I hope Rahul meets his parents, spends some time with them, and comes back in the house again because I need to see. You know, before wrapping up, I just want to know कि शिफाली आप इस हफ्ते किसको thumbs up देंगी और किसको thumbs down देंगी? Thumbs up मैं दूंगी रूबीना को। वो जो दहाड़ी है कि कविता जैसी इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी शो छोड़ के चली गई। अब क्लियरली रूबीना केम आउट एज अ विनर बिकॉज आप ये मानो या कि कविता घबरा गई या फल गई या अपसेट हो गई, जो भी है, रूबीना ड्रोव कविता आउट ऑफ द हाउस. दैट मीन्स रूबीना हैज परफॉर्म्ड वेल. सो थम्स अप टू रूबीना. Thumbs up to Ejaz. He
he, in his circumstances, he's doing very well in the house. He also was a good संचालक. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे संचालक से हो जाता है. I mean, we are all human. But I think उन्होंने अच्छा किया, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि कुछ करो. So I think he did well as a संचालक. So this week, Rubina and Ajaz. And I'd like to give a thumbs down to Rahul for quitting. He should not. He should not have quit. Right. Thank you so much, Shefali, for taking out time. And please अपने fans को बोलिए कि review के लिए और questions भेजते रहे हमें जैसे Yes, आज भी guys, भेजा हम please लोगों ने. keep sending us questions. And also do tell us if you would like to watch Big Boss now. Do you think it is going to get exciting now with the challengers in the house? Yes. Thank you, Shefali. Thank you. Take care, and You too. we'll see you next week. Yeah. You'll see. All Bye. right. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.